Hello and welcome to RiseS YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss one of the most important article from today's The Hindu newspaper. Let's see the article at first. What does 10th schedule provide on party mergers? देखिए ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये आज का द हिंदू में अपियर हुआ है एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 10th शेड्यूल. ओके, इन स्टैटिक पार्ट लक्ष्मीकांत वी ऑलरेडी रीड अबाउट की 10th शेड्यूल, बट in this article in this article the Hindu newspaper, I have identified some important news lines which can be important for upcoming prelims 2027 क्योंकि let's see the question number 88. This particular question asked in 2025 prelims already. ठीक है, and what is the theme? The theme is 10th schedule. So you have to know little bit in details about 10th schedule. What is 10th schedule and what is some provisions and Supreme Court judgment for men's point of view. Now start with the context. At the end, I will discuss how to solve this kind of question in actual exam environment. How to solve this kind of question by your putting your logic. Okay. What is the context? Recently, the merger of the some TMC MP with NCP reignited the debate over the interpretation of the merger provision under 10th schedule and the conditions for avoiding disqualification. We know कि 10th schedule is already about talking about कि disqualification of MPs and MLAs, right? It is the main provision. Now, what is the 10th schedule in anti-defection law? Actually, this 10th schedule anti-defection law was introduced by in 1985 by 52nd Constitution Amendment Act. That is the first basic fact you have to remember कि 52nd Amendment Act in 1985 through government introduced की 10th schedule aims to curb political defection and ensure government stability. इसका पीछे का रीजन क्या था ना, 1960 टू 1975 इस ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज मर्जर हो रहा था एंड ड्यू टू मर्जर पॉलिटिकल मार्चिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज की एक इंस्टेबिलिटी तैयार होता था कि चाहे वो प्रोविंस लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट bring about की 52nd Constitution Amendment Act 1985 which tells about the anti-defection law to stable the government. Okay, provides for the disqualification of the legislator who defect, grounds for the disqualification. Now ground for the disqualification, ये तो स्टैटिक पार्ट है. ए लेजिस्लेटर कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ देयर आर द टू प्रोविजंस. ठीक है, दे वॉलंटरली गिव अप द मेंबरशिप ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी और दे वोट और एब्सटेन कॉन्ट्री टू द पार्टी व्हिप विदाउट परमिशन. दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस. यू हैव टू रिमेंबर कि किस ग्राउंड पे ए लेजिस्लेटर कैन बी डिस्क्वालिफाइड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की की टर्म्स. There are the two terms specifically mentioned in the Hindu newspaper. One is the political party and is the legislator party. What is the difference between the political party and the legislator party? Political party means it is talking about the whole party. Okay, in the case of in the today's context, it is the case of the TMC, Trinamool Congress, जो which is currently defeated in West Bengal election. Okay, so political party means the entire party organization at the national or the state level. This is the political party. What is the legislative party? Legislative party and all elected members of a political party in a particular house. It means Lok Sabha या तो Rajya Sabha, or in the case of the state it is Vidhan Sabha or Vidhan Parishad, right? Now merger provisions. There are the some important merger provisions. As you can see, there in the in our actual law, original law, there are the two paragraphs. One is the paragraph 3 and one is paragraph 4. What is the paragraph 4? Paragraph 4 is protection from the disqualification if a political party merges with another party and the merger is approved by the at least 2/3 of its legislature party. That is all about paragraph 4, as you can see. What is the paragraph 3? Now allowed protection for 1/3 members splitting from a party which is later deleted by the 91st Constitutional Amendment Act. It means original जो law था 51st जो amendment act लाया गया था in ये जो ओरिजिनल 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1985 पे जो लाया गया था, उसमें दो प्रोविजंस. एक था पैराग्राफ
3 एंड 1 इज पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 3 में क्या बोल रहा है कि 1/3 अगर मेंबर अगर मार्च करते हो तब, और 1 और पैराग्राफ 3 में क्या होता है 2/3। बट ये वाला जो प्रोविजन है ये अभी नहीं है। क्यों नहीं है कि 91st अमेंडमेंट के थ्रू इसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, सो these are the important point we have to remember ड्यू टू मिस यूज। ये देखिए कि पैराग्राफ 3 वॉज डिलीटेड बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट ड्यू टू इट्स मिस यूज। रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट। अब डिबेट क्या है? डिबेट है कि ना 10th शेड्यूल परमिट्स द मर्जर ऑफ एन ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, नॉट मेरेली ए ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स। ठीक है, ये वाला जब पॉइंट अगर देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से पढ़ पाएंगे कि व्हाट मे बी द वे फॉरवर्ड। ए प्लेन रीडिंग ऑफ द 10th शेड्यूल अलाउज ओनली फॉर merger of a political party with another party that is approved by the 2/3 of its legislator party। ये तो एक प्रोविजन है। इट डज नॉट ऑथोराइज 2/3 of the legislature party in the house to merge itself with another political party to claim immunity from the defection। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यू हैव टू रिमेंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स 2027। मैं बार बार कह रही ये वाला लाइन आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें कहना क्या चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं कि ए प्लेन रीडिंग ऑफ द 10th शेड्यूल अलाउज ओनली फॉर मर्जर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी विथ अनदर पार्टी। मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है ए और एक पॉलिटिकल पार्टी है बी। अगर पॉलिटिकल पार्टी ए खुद चाहता है कि बी के साथ मर्ज हो जाओ तो इसके अंदर 2/3 पीपल का मेजोरिटी होना चाहिए। बट अगर ए पार्टी है, दूसरे सिनेरियो क्या है, ए एक पार्टी है, बी एक और एक पार्टी है, बट इसके अंदर जो मेंबर है 2/3 मेंबर्स अगर खुद जाना चाहता है कि बी के अंदर, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर नहीं आएगा कि जो डिफेक्शन जो केस है इसका जो प्रोविजन है इसके अंदर लागू नहीं होगा ये, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो मेन पार्टी है ये तो अप्रूव तो नहीं किया, तो फिर किस बात की डिस्क्वालिफिकेशन से आप लोग बचोगे? यही है एक प्रोविजंस। ठीक है, 2/3 सपोर्ट इज मिंट। ये देखिए 2/3 सपोर्ट इज मीन टू अप्रूव ए पार्टी मर्जर, नॉट टू एनेबल लेजिस्लेटर टू इंडिपेंडेंटली स्विच पार्टीज। ये वाला है मेन मुद्दा। ठीक है, व्हेदर लेजिस्लेटर्स अलोन कैन क्लेम मर्जर प्रोटेक्शन रिमेन्स ए मैटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड जुडिशियल स्क्रूटिनी। यही है मेन मुद्दा। अब जो डिसाइड कौन करेगा, अब नेक्स्ट आते हैं कि डिसाइड कौन करेगा कि डिफेक्शन जो एंटी डिफेक्शन के जो लॉ में जो पार्टी डिफेक्शन तो वो डिसाइड कौन करेगा ना? स्पीकर एंड चेयरमैन डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन केसेस अंडर द 10th शेड्यूल। देयर डिसीजन आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। लैंडमार्क जजमेंट क्या था ना, क्योटो होलन केस, जिसमें 1992 में बोला गया था कि अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 10th शेड्यूल एंड हेल्ड द स्पीकर्स डिसीजन एंड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Here is a simple MCQ I have given. Please try to solve this question as your own pace by pausing your video and comment your own answer, okay, in the comment section. Now coming to the क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एक्चुअल एग्जाम एनवायरमेंट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। If any questions arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th schedule, ठीक है, the President's decision in accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final। यहाँ पे क्या बोले कि प्रेसिडेंट्स डिसीजन। अब यहाँ पर आपका जो कॉमन सेंस है, जो आपने बेसिक रीडिंग किया है उसी से ही सवाल है कि ठीक है, आप लोग जानते हैं कि नहीं प्रेसिडेंट नहीं, ये स्पीकर है, स्पीकर का डिसीजन इज फाइनल। एंड स्पीकर का डिसीजन फाइनल इन द सेंस अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अगर रिव्यू कर सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं, जो क्योटो होलन केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये एक बहुत ही मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि कोई भी वर्ड पॉलिटिकल पार्टी मेंशन है ही नहीं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, इसी तरह से आप लोग, ये एक इजी सवाल है, लो हैंगिंग फ्रूट से इस तरह का जो सवाल है, दिस ऑल आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स। अगर ये वाला सवाल आप छोड़ के आ रहे हो तो इट मीन्स यू आर आउट ऑफ द रेस।
ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बार बार जो बेसिक्स है, आप बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बेसिक्स ही है जो आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है ना, मैंने क्या बोला कि ये वाला जो पॉइंट है पर्टिकुलर, आपने तो पूरा जान लिया कि 10th शेड्यूल किसके बारे में है। दिस इज ऑल अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। इट इज अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1985। ये भी आपको पता चल गया, ये बेसिक्स है। अब इसमें है डिफेक्शन किस ग्राउंड पे होता है। डिफेक्शन ग्राउंड पे होता है कि दो ग्राउंड। एक ग्राउंड क्या होता है कि ना, अगर कोई मेंबर्स एब्सटेन और वोट किया कि विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्टी, एंड और एक ग्राउंड क्या है कि ये वाला जो ग्राउंड था, वॉलंटरीली गिव अप मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। वॉलंटरीली अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मेंबरशिप गिव अप कर रहा है तो ये वाला एक पॉइंट हो गया। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स जो आपको पता होना चाहिए कि ए प्लेन रीडिंग ऑफ द 10th शेड्यूल अलाउज ओनली फॉर मर्जर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी विथ अनदर पार्टी दैट इज अप्रूव्ड बाय 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर पार्टी। ठीक है, अगर कोई पार्टी, लेजिस्लेचर पार्टी अगर मार्च करना चाहेगा तब उसके लिए प्रोविजंस है। बट अगर एक पार्टी के अंदर कोई मेंबर्स, इंडिपेंडेंट मेंबर्स, अगर मान लीजिए एक मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ए, इसके अंदर कोई मेंबर्स है 2/3 मेंबर, अगर खुद ही डिसाइड कर ले कि नहीं हम लोग मार्च कर जाएंगे दूसरे पार्टी के साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आई रिपीट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक टसल चल रहा है, एक डिबेट चल रहा है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है इसके साथ लागू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यही रहा हमारा आज का इम्पोर्टेंट डेटा फैक्ट्स जो आने वाले प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।